Dear friends, on the occasion of World Parrot Day, I would like to share very important, very useful, and unique information related to birds. Friends, birds are most beautiful animal on this planet. There are about 10,000 living species of birds are known at present. Birds are evolved from reptiles and the Archaeopteryx is regarded as connecting link between reptiles and birds. आर्क्योप्टेरिक्स एक फॉसिल्स है जो कि सरीसृप और पक्षी के बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है. The size of birds varies. The smallest bird is hummingbird, which size about 5 centimeter, and the largest bird is ostrich, which size is about 2.75 meter. Birds are adapted for aerial mode of life. They can fly to long distances. However, some birds are flightless bird and they can't fly and they belong to order Ratidae. The examples of flightless birds are ostrich, emu, kiwi, etc. Birds are very important to natural ecosystem. They control population of pests. Pests are biological components which are harmful to crop. They act as pollinators in which they transfer pollen grain from one flower to other flower where cross fertilization takes place. Some birds are also act as scavenger such as vulture and clear the environment. They feed on dead bodies of animals and make the environment clean. Birds are also associated with god and goddesses in Indian culture and Indian mythology. There are various birds such as pigeon, peacock, owl, parrot, vulture, which are associated with our god and goddesses. Birds are herbivores, carnivores, and omnivores. So most of the birds are diurnal, which are active in daytime, while some birds are nocturnal and active at night. The body of birds is aeroplane-like or spindle shape, which is divided into four parts, and these four parts are head, neck, trunk, and tail. Birds are bipedal, which means they have only two legs because four limbs of the birds are modified into wings which is used in flight. तो इनके जो अग्रपाद हैं वो विंग्स में रूपांतरित हो गए हैं, इसलिए ये बाइपीडल है और उड़ने के लिए सक्षम है. The hind limbs of birds are strong and well adapted for perching, walking and swimming. They also bear claws. तो जो इनके हाइंड लिम्स हैं, पिछले पैर हैं, तो उनमें क्या होता है, अनुकूलन होता है पर्चिंग के लिए. पर्चिंग का मतलब किसी ट्विग में बैठने के लिए एडेप्टेड होते हैं, वॉक करने के लिए एडेप्टेड होते हैं और स्विम करने के लिए एडेप्ट होते हैं, जिनमें क्लॉज भी पाए जाते हैं. Skin of birds lack glands. However, uropyzal present at the base of the tail. The uropyzal gland is found between caudal vertebra and pygostyle. This gland secretes lipid substance which makes the feather waterproof. तो यहाँ से एक लिपिड सब्सटेंस सिक्रीट होता है यूरोपाइजल ग्लैंड से, जो कि इनके फेदर्स को वाटरप्रूफ बनाता है, और ये ज्यादा डेवलप होता है जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं उनमें. The exoskeleton of birds is made up of different type of feathers. These feathers perform various functions such as incubation. These feathers act as insulator and maintain the body temperature. They also use in identifying male and female. And some birds use these feathers to make their nest. Endoskeleton is fully ossified, which means endoskeleton of birds is made up of bones,
टीथ आर टोटली एब्सेंट इन बर्ड्स। अब इनमें दांत नहीं पाए जाते हैं बल्कि बीक पाई जाती है, और ये बीक अलग अलग टाइप के बर्ड्स में अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे कुछ फ्रूट ईटिंग बीक होती हैं, कुछ सीड ईटिंग बीक अलग टाइप की होती हैं, कुछ मांस खाने वाली बीक जो कि आगे से कर्व्ड होती हैं वो वल्चर और ईगल में पाई जाती हैं। कुछ बीक पिसीवोरस जो बर्ड्स हैं उनमें अलग टाइप की बीक पाई जाती है, और कुछ इंसेक्टिवोरस है उन बीक्स में अलग टाइप का मॉडिफिकेशन होता है। इनमें जो बोन्स हैं, स्पेशली जो लॉन्ग बोन्स हैं, वो हॉलो पाई जाती हैं, ये खोखली होती हैं, इससे इन्हें उड़ने में मदद मिलती है। और इनमें बोन मैरो भी एब्सेंट होता है। जो बर्ड्स में स्कल होता है वो मोनोकॉन्डाइलिक होता है, इसका मतलब इनमें सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। अब ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या है? ये हमारे स्कल को वर्टिब्रल कॉलम से जोड़ने वाली एक बोन है। तो जो मैमल्स हैं उनमें ये दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं, जबकि बर्ड में एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है, इसलिए ये मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं। और इसलिए ये अपना जो सर है वो चारों तरफ को घुमा सकते हैं, जबकि मैमल्स में हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हम अपने गर्दन को एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही मोड़ सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो यूनिक फीचर ऑफ बर्ड। वर्टिब्रल कॉलम ऑफ बर्ड इज वेरी शॉर्ट वर्टिब्री विद हेट्रोसिलस सेंट्रा। जो इनका सेंट्रम होता है वर्टिब्री का वो हेट्रोसिलस होता है। हेट्रोसिलस का मतलब होता है एक सेंट्रम में एक साइड से वो कॉनकेव होगा और दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स होगा, तो उस टाइप की हम वर्टिब्री को हेट्रोसिलस वर्टिब्री बोलते हैं। इनमें एक यूनिक इनके वर्टिब्रल कॉलम में एक यूनिक फीचर और आता है सिनसेक्रम। ये पोस्टीरियर थोरेसिस वर्टिब्री, लुम्बर वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री और जो एंटीरियर साइड की कॉडल वर्टिब्री है, पूंछ वाली वर्टिब्री है, उनके फ्यूजन से मिलके बना होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बर्ड्स में पाया जाता है। हार्ट ऑफ द बर्ड is completely four chambered with two auricle and two ventricle. Urinary bladder is absent in birds. जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो बर्ड्स में नहीं पाया जाता है, और ये भी एक एडेप्टेशन है कि अगर यूरिनरी ब्लैडर होता तो इनकी बॉडी में यूरिन स्टोर होती और इनका वेट ज्यादा हो जाता, तो इससे इनको फ्लाइट करने में मदद नहीं मिलती, तो इसलिए इनमें यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एब्सेंट होता है। Birds are adapted for aerial mode of life, therefore they require more energy and more oxygen. The respiratory system is much complicated and provided with air sac. Lungs are spongy instead of hollow. तो इनके लंग्स में जो है वो एयर सैक पाए जाते हैं जो कि इनको असिस्ट करते हैं रेस्पिरेशन में, क्योंकि उड़ना बहुत आसान काम नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो जैसे ही बर्ड कोई एक बार इनहेल किसी गैस को करती है, ऑक्सीजन को करती है, तो कुछ ऑक्सीजन इनके एयर सैक में ट्रैप हो जाती है, और जब ये फिर से एक्सहेल करते हैं तो ये ऑक्सीजन इनको दोबारा से मिलती है। देयरफॉर बर्ड पोसेसेस डबल रेस्पिरेशन, इनमें डबल रेस्पिरेशन पाया जाता है। लैरिंग्स विद आउट वोकल कॉर्ड्स, जो लैरिंग्स होते हैं वो वोकल कॉर्ड पाई जाती है, और इनमें जो साउंड बॉक्स है या वोकल ऑर्गन है उसे कहते हैं हम सिरिंग्स। ये यूनिक कैरेक्टर है, बर्ड में वोकल ऑर्गन जो है सिरिंग्स पाया जाता है, जिससे ये अपनी आवाज निकालते हैं, चाहे वो आवाज अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए हो या प्रीडेटर को वार्निंग साइन के लिए हो। तो ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पे एक स्पेशल ऑर्गन है सिरिंग्स, वो वहां पर पाया जाता है। मेल और फीमेल जो है बर्ड्स में सेपरेट होते हैं, और ये ज्यादातर क्या दिखाते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस in sexual dimorphism we can identify and we can distinguish between male and female। तो जब हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो उस फिनोमेनन को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। इनमें सिंगल ओवरी पाई जाती है, और वो भी लेफ्ट साइड की ओवरी इनमें फंक्शनल होती है। जो राइट साइड की ओवरी होती है वो वेस्टिजियल या नॉन फंक्शनल होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बर्ड्स में, इट मींस एग is fertilized inside the body of female।
तो जो एग होगा वो फर्टिलाइज होगा बॉडी के, फीमेल की बॉडी के अंदर, लेकिन जो डेवलपमेंट होगा इनमें वो थ्रू इंक्यूबेशन होगा। इंक्यूबेशन का मतलब होता है सेकना। तो ये अपने एग्स को एक टेम्परेचर पे सेकते रहते हैं जिससे इनके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब जो एग्स इंक्यूबेशन से सेके जाते हैं उनसे दो टाइप के यंग वंस मिलते हैं। पहला है प्रीकॉशियल या फुली फॉर्म्ड। अब जो प्रीकॉशियल है उसमें क्या होता है कि ये इनमें वेल डेवलप्ड डाउन फीदर्स होते हैं, आईज ओपन होती हैं और ये घोंसले से जैसे ही ये हैचिंग करेंगे उसके 1-2 घंटे बाद ही अपने पेरेंट्स के साथ नेस्ट से बाहर आ जाते हैं, राइट। जो इसके एग्जाम्पल है हेन्स, डक्स, शोर बर्ड्स। और जो दूसरे टाइप के हैं इमैच्योर, एल्ट्रिसियल और न्यूडिकुलस भी इनको बोलते हैं। दीज आर born with closed eyes, naked and remains in their nest for few days। कुछ दिनों के लिए ये अपने नेस्ट में ही रहते हैं और फिर यहीं पर इनको फीडिंग कराते हैं इनके पेरेंट्स और फिर इनमें फेदर्स डेवलप होते हैं, उसके बाद ये अपने नेस्ट से बाहर निकलते हैं। तो दो टाइप के इसके एग्जाम्पल हैं हेरोन्स, वुडपेकर्स, कुकूज और जितनी भी पेजराइन बर्ड्स हैं। पेजराइन का मतलब होता है जिसमें पेजर डोमेस्टिकस या क्रो के मेंबर्स आते हैं। इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी इनमें ओवल शेप होती है, न्यूक्लिएटेड होती है और बाइकॉन्वेक्स होती हैं। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक मीन्स इनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और इनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। उनको हम होम्योथर्मिक कहते हैं। ऐसे होम्योथर्मिक एनिमल सिर्फ दो ही पाए जाते हैं, बर्ड्स और मैमल्स। बाकी जितने भी हैं वो पोइकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। As you know, parental care is process in which parents look after their young ones। तो बर्ड्स में भी बहुत अच्छा पेरेंटल केयर पाया जाता है। बर्ड्स मेड डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट ऑन लैंड, ट्रीज, बिल्डिंग्स, सॉइल एटसेट्रा एंड प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड यंग वंस। तो किस तरह से ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बर्ड्स का। इसे पहले दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आर्कियोर्निथीस और नियोर्निथीस। जो आर्कियोर्निथीस है उनमें एक ही ऑर्डर डिवाइड है, आर्कियोप्टेरिगिफॉर्म्स। ये सारी की सारी एक्सटिंक्ट बर्ड है। जो नियोर्निथीस है ये मॉडर्न बर्ड्स है और इसके 4 सुपर ऑर्डर हैं, ओडोगनेथी, रेटिटी, इम्पेनी और कैरेनिटी। जो ओडोगनेथी है इनमें टूथ पाए जाते थे और ये भी अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब रेटिटी से स्टार्ट करते हैं। रेटिटी वो सुपर ऑर्डर है जिसमें फ्लाइटलेस बर्ड्स आती हैं जो उड़ नहीं सकती हैं और इसके ऑर्डर्स हैं स्ट्रूथियोनिफॉर्म्स, रिहीफॉर्म्स, कॉसोरिफॉर्म्स, एप्टेरिगिफॉर्म्स, डायनोर्निथिफॉर्म्स और टिनामीफॉर्म्स। नेक्स्ट ऑर्डर है इम्पेनी। इम्पेनी में एक ही ऑर्डर में डिवाइड इसे किया गया है, स्पेंसिफॉर्म्स। इसमें पेंगुइन्स आती हैं, ये भी फ्लाइटलेस होती हैं और एक्वेटिक होती हैं। ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये फ्लाइटलेस बर्ड्स की हैं, जैसे ऑस्ट्रिच, कौसोरी, किवी या मोआ। ये पेंगुइन्स, स्पेंसिफॉर्म्स, इसका सुपर ऑर्डर इम्पेनी है। अब नेक्स्ट लास्ट ऑर्डर आता है कैरेनिटी और नियोगनेथी भी इसे बोला जाता है। इसके ऑर्डर्स जो हैं डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, कि इनका हैबिटेट क्या है। तो जो पेजरीफॉर्म, पिसीफॉर्म, कोलम्बीफॉर्म्स और सिटेसिफॉर्म्स हैं वो आर्बोरियल बर्ड्स हैं। इसका मतलब ये ट्रीज पे रहती हैं। और पेजरीफॉर्म में पेजर डोमेस्टिकस या कोरोबस कोरोबस, कोरोबस स्प्लेंडिस जो क्रॉस की स्पीसीज है और स्पैरो की स्पीसीज है वो पेजरी फॉर्म्स में आती है। पीसी फॉर्म में वुडपेकर्स आते हैं, कोलम्बी फॉर्म में कोलम्बा लिबिया कबूतर आता है और सिटेसी फॉर्म में डिफरेंट टाइप के पैरेट्स की स्पीसीज आती है। ये आर्बोरियल होती है सारी। गैलीफॉर्म्स और कुकलीफॉर्म्स जो है इनको टेरिस्टीरियल बर्ड्स भी बोला जाता है। ये जमीन पे रहती हैं और इसमें पीकॉक, हेंस और कुकली फॉर्म में
कुकूज या कोयल इंक्लूड की गई है। ये कुछ एक्वेटिक बर्ड्स हैं, उनके ऑर्डर है एंसिरिफॉर्म्स, कोरेसिफॉर्म्स, गेविफॉर्म्स, पॉर्टिसिपेटिफॉर्म्स, प्रोसेलरिफॉर्म्स, पेल्केनिफॉर्म्स, और इसमें आप डक देख सकते हैं, किंगफिशर, ग्रीव्स और पेल्कन्स की स्पीसीज इसमें इंक्लूड की गई है। कुछ शोर बर्ड्स भी पाई जाती हैं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के किनारे पे मिलती हैं, इनको शोर एंड वेडिंग बर्ड्स बोला जाता है, और इसमें कैरेडरीफॉर्म्स की, सिकोनीफॉर्म्स की और ग्रुईफॉर्म्स की स्पीसीज आती हैं। फॉल्कोनीफॉर्म्स और स्ट्रिगिफॉर्म में जो बर्ड्स कार्निवोरस होती है वो इंक्लूड की गई हैं, इनको इसलिए बर्ड्स ऑफ प्रे भी कहा गया है। इसमें वल्चर, डिफरेंट टाइप के वल्चर और वजर्ड, ईगल और काइट इसके कॉमन एग्जाम्पल है। एपोडिफॉर्म्स और कैप्री मुगली फॉर्म्स में नॉक्टर्नल बर्ड्स इंक्लूड की गई हैं, ये मेनली इंसेक्टिवोरस होती हैं। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था। अब इनको कैसे कंजर्व किया जाए? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, pollution, urbanization, industrialization reduces the population of birds. We must provide habitat to conserve these most beautiful species of earth. And in last but not the least, we are thankful to Professor Dinesh Bhatt, Registrar of Gurukul Kangadi University, Dr. Vinay Sethi ji, Professor Uttaranchal Sanskrit University, and Dr. Vikas Saini ji, Principal, Swami Vivekanand College of Education, Roorkee, for conservation of birds with special reference to sparrow. इन्होंने स्पैरो की कंजर्वेशन के लिए बहुत काम किया है, तो ऐसे साइंटिस्ट को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।